پشاور حسن خیل کے علاقے میں خواریوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے فیڈرل کانسٹیبلری ایف سی کے 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید اہلکاروں میں نائک عامر، لانس نائک یوسف، لانس نائک محمد ریاض سپاہی اجمیر، احسان اور ریاض شامل ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ محسن نقوی نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، قوم ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے لواحقین کے حوصلے کو سراہتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ دینے پر غور کیا، جبکہ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بحرینی نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی بحری سیکیورٹی پاک بحریہ کے کردار کو سراہا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کی جدید کاری اور دفاعی صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس کل سپہر 4 بجے طلب کیا گیا۔ وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ بجٹ جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی بھیج دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب اور پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی تحفظ کے لیے 25 ارب اور سترہ پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آپریشنل اخراجات کے لیے 580 ارب 20 کروڑ رکھنے کی سفارشات کی گئی ہیں، جبکہ سرمایہ کاری کے دیگر پروگرامز کے لیے 221 ارب 90 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ حکومت وفاق کو مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پنجاب حکومت وفاق کو 577 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے سکتی ہے، جس سے وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورے کر سکے گا۔ پنجاب کو NFC کے تحت قابل تقسیم محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ روپے ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے خد و خال کو حتمی شکل دے دی۔ پنجاب کے نئے مالی سال کے مجموعی بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان بندوخیل نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور وفاقی اور صوبے کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی نے وفاق اور بلوچستان کے درمیان مؤثر رابطوں، ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاح و بہبود اور صوبے کی مجموعی ترقی سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بلوچستان کو درپیش چیلنجز، ترقیاتی ترجیحات اور عوامی مسائل کے مؤثر حل کے لیے وفاق اور صوبے کے درمیان قریبی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایاز صادق نے بلوچستان میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے صوبائی حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان اقدامات کو خوشائند قرار دے دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। माली साल के वफाकी बजट, ज़रई इस्लाहात और शोबे को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में किसान तंजीमों, डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर्स, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, बीज तैयार करने वाली कंपनियों समेत कौमी और मल्टी नेशनल इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरा ने मौजूदा इलाके सूरत हाल में अमन के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में की जाने वाली कोशिशों को सराहा, जबकि हालिया सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात को ज़रई शोबे के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में ज़रई शोबा कलीदी किरदार अदा कर सकता है और इसमें इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे की पायदार तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क भर के माहिरीन, मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ इजरायली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कशीदगी में कमी के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने रब्ता करके इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ना नई जंग चाहता हूँ और ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया था कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेला पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए सफारती राब्ते मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ईरान की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफ़ीर ने बताया कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ख़यालात और तजवीज़ के तबादले का अमल बदस्तूर जारी है। दोनों ममालिक पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए मुख्तलिफ निकात पर अपनी आरा और तजवीज़ का तबादला कर रहे हैं ताकि एक मुतफ़िक़ा और काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगरचे अब तक दोनों फ़रीक़ैन किसी हतमी मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके, मुज़ाकराती अमल जारी है और पेशरफ्त के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अली से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें MT ऑनर 25 में सवार पाकिस्तानी मग़वियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने सोमाली हम मनसब को सूरत हाल पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह करते हुए मग़वियों की खैरियत, उनकी जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी करवाई कि मग़वियों की जल्द रिहाई के लिए हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने वसी तर इलाकाई तनाज़ुर में पाकिस्तान की तामीरी सिफारती कोशिशों और सालसी के किरदार को सराहा। और अब आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में फितनल ख़वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर-ए-आम पर आ गए, जिसमें वो अफ़गानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और इसके असरात बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। खारजी शहजाद के कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब देते हुए कह रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे। हमें अस्करियत और ताकत के ज़रिए कश्मीर की फ़ौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सैयद फैसल गिलानी ने नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फैसल गिलानी ने रावलाकोट में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की मजम्मत की। वीडियो बयान में फैसल गिलानी ने कहा कि हम पहले दिन से अवामी एक्शन कमेटी के लिए बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते रहे हैं, क्योंकि हम आटा, बिजली और दीगर बुनियादी हुकूक के लिए इकट्ठे हुए थे। उनमें से बहुत सी चीज़ें हमें मिली। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में रावलाकोट में खून की होली खेली जा रही है। कलदम एक्शन कमेटी के इन कार्रवाइयों को देखते हुए लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ।
हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपये इनामी रकम मुकर्रर कर दी है। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मौसर मालूमात फराहम करने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपये इनाम दिया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इत्तला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला ने इनामी स्कीम पर फौरी अमल दरामद के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक चैला के इलाके में किए गए ऑपरेशन के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात भी बरामद किए गए हैं। तहकीकात के दौरान एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद हुआ, जिसमें 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि हसास तनसीबात से मुतालिक नक्शे और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई हैं। बरामद शुदा मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी तजिया जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुमकिन सहूलतकारों और नेटवर्क के दीगर रवाबित की भी तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निष्कारी के हवाले से अहम जायज़ा इजलास हुआ। निष्कारी के अमल पर पेशरफ्त और आइंदा के लाए अमल का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निष्कारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी के अमल को तेज़ किया जाए, तमाम मराहिल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि निष्कारी के बाद सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर कारकर्दगी के लिए मजबूत रेगुलेटरी निज़ाम तश्कील दिया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में इस्लामाबाद बिजली फराहमी कंपनी, गुजरावाला बिजली तकसीम कार कंपनी, फैसलाबाद बिजली फराहमी कंपनी की निष्कारी की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होना दोनों ममालिक के लिए बाइस मसरत है। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात आसिफ तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक चीन दोस्ती का जश्न मना रही है और पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और देरीना ताल्लुकात पर मुकम्मल यकीन रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी गहरे और मजबूत रवाबित मौजूद हैं, जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अता तारड़ का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित, मीडिया ताउन और सकाफती तबादले मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं। वफूद के तबादले भी मुहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने बदलते हुए आलमी निज़ाम के तनाज़ुर में पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात के मौजू पर वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 दहाइयों में नुमाया तौर पर मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर के दरमियान आला सतह रवाबित ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत दी है, जबकि दोनों ममालिक 2030 तक इक़्तिसादी ताउन के प्रोग्राम पर भी मुत्तफ़िक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस तिजारती रुकावटों के ख़ात्मे, कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ और कसीरुल जहती आलमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में आटे और गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी गई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि आवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम करने के लिए फ्लोर मिल्स को 3,300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की बैनुल अक़वामी तरसील खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को फराहमी से मुताल्लिक़ मामलात पर भी गौर किया गया। ब्रीफिंग में इस बात पर वाज़ेह किया गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने के शवाहिद मौजूद नहीं और न ही इस हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई हैं। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा।
صوبہ سندھ میں گندم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ صوبہ وزیر خوراک کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی قیمتوں پر اجلاس ہوا۔ محبوب الزمان نے کہا کہ عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گندم کے ذخائر کی مکمل رپورٹ طلب کی ہے۔ گندم کے سٹاک سے متعلق تفصیلی رپورٹ جلد وزیر اعلیٰ کو بھیجی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سستا اور معیاری آٹا فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شفافیت کے لیے کسانوں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، 3 ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت میں ₹1.99 کمی کر دی گئی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی ₹1.99 فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی جنوری تا مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ کھیل کے میدان سے بات کریں گے۔ فیفا کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے نامزد ریفری کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ صومالی ریفری عمر عبدالقادر ارطان کو میامی ایئرپورٹ پہنچنے پر داخلے کی اجازت نہ مل سکی اور انہیں امریکہ سے واپس بھیج دیا گیا۔ امریکی حکام نے ریفری کو ترکیہ واپس جانے والی پرواز میں بٹھا دیا۔ عمر عبدالقادر ارطان کو 2025 کا بہترین افریقی ریفری قرار دیا گیا تھا۔ صومالی سفارت خانے نے ریفری کو سفارتی پاسپورٹ بھی فراہم کیا تھا۔ واضح رہے کہ دنیا کھیل کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز 12 جون سے ہونے جا رہا ہے۔